وہ فرید کے عقب میں تن کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے یہ جاننے میں دیر نہ لگی کہ کانسٹیبل نے میرا اشارہ کم حق سمجھ لیا تھا۔ فرید کی حالت خاصی خراب ہو رہی تھی۔ میں نے تھانے پہنچتے ہی اسے 2 ہٹے کٹے کانسٹیبلز کے حوالے کر دیا، اس ہدایت کے ساتھ کہ یہ کافی دنوں سے بھوکا ہے، لہٰذا اس کی خاطر تواضع کی جائے۔ چنانچہ ان اہلکاروں نے فرید کی خوب آؤ بھگت کی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا، پھر منت ریز لہجے میں بولا، سرکار، ان لوگوں نے مجھے بہت مارا ہے۔ اوئے کھوتے دے کھر، میں نے اسے جھڑکا۔ انہوں نے تو تمہیں دال روٹی کھلا کر مہمانداری کا ایک چھوٹا سا نمونہ دکھایا ہے۔ میں تمہیں جو مرغ پلاؤ کھلاؤں گا نا، اس کا ذائقہ تمہارے حلق میں اٹک کر رہ جائے گا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ مجھے معاف کر دیں جناب، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ تم نے جرم نہیں بلکہ جرائم کیے ہیں، میں نے سخت لہجے میں کہا، لہٰذا یہ خیال تو ذہن سے جھٹک دو کہ میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا۔ وہ رونے والے انداز میں منت سماجت کرنے لگا۔ میں نے اس کے پیچھے کھڑے سپاہی کو اشارہ کیا۔ کانسٹیبل نے فرید کی پنڈلی پر ایک ٹھڈا رسید کیا اور خاصے جارحانہ انداز میں کہا، اوئے لکڑی کے باندر، سیدھا کھڑا رہے۔ ملک صاحب جو پوچھیں اس کا سیدھا اور سچا جواب دینا، ورنہ چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ فرید وحشت زدہ انداز میں مجھے تکنے لگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا یہ بات درست ہے کہ 2 ماہ پہلے محلے کے مین بازار میں متوفی فردوس بی بی نے تمہارے منہ پر ایک سناٹے دار چماٹا مارنے کے بعد نفرت سے تھوک دیا تھا؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ انکار کرنا چاہ رہا ہو۔ میں نے جلدی سے کڑک کر کہا، سوچ سمجھ کر جواب دینا فرید بخش، اگر تم نے غلط بیانی سے کام لیا تو یہاں سے اپنے قدموں پر چل کر نہیں جا سکو گے، اور ہو سکتا ہے کہ 4 کندھوں پر اٹھ کر سیدھے قبرستان کا رخ کرو۔ اس کی آنکھوں میں سراسیمگی پھیل گئی۔ قدرے کمزور آواز میں بولا، وہ جناب، وہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ فردوس خواہ غصہ کھا گئی تھی۔ اسے کس بات پر غصہ آیا تھا؟ میں نے استفسار کیا۔ تم نے کچھ تو ایسا ویسا ضرور کہا ہوگا۔ کچھ نہیں سرکار، وہ نگاہ چراتے ہوئے بولا، میں نے اس سے اپنے دل کی بات کہی تھی۔ ایسی کون سی بات تھی؟ میں نے کھا جانے والی نظر سے اسے گھورا۔ ذرا میں بھی تو سنوں۔ جناب سچی بات تو یہ ہے کہ، وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا، فردوس مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ میں چپکے چپکے اسے چاہنے لگا تھا۔ اوئے چاہت کے گھوڑے، میں نے ڈانٹا، تم نے تو مجھے بتایا تھا کہ تم یعقوب کو اپنا دوست اور فردوس کو اپنی بہن سمجھتے ہو، اور اب تم مجھے محبت کی کوئی کہانی سنا رہے ہو۔ کیا یہی تمہاری شرافت کا بھرم ہے؟ جناب میں فردوس کو ویسے تو بہن ہی سمجھتا تھا، وہ لنگڑی وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن دل پر مجھے اختیار نہیں تھا، دل اس کی محبت میں مچلتا تھا۔ اوئے بھونڈے عاشق کی اولاد، میں نے اسے دبکا مارا، جس سے محبت کی جاتی ہے اسے بیچ بازار بدمعاشوں کی طرح روک کر فضول بکواس نہیں کی جاتی۔ سرکار میں نے تو بڑی شرافت سے بات کی تھی۔ وہ مجھے چکر دینے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے میری پوری بات نہیں سنی اور فوراً ہی جلال میں آ گئی، بس تم جتنے شریف اور جلیبی کی طرح سیدھے ہو نا، وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم نے فردوس کا راستہ روک کر اس سے بےہودہ مذاق کیا تھا۔ جب اس نے ڈانٹ ڈپٹ کی تو تم بڑے واہیات انداز میں اس کی طرف آگے بڑھے تھے۔ اسی وقت اس نے پہلے تمہیں تھپڑ رسید کیا اور پھر تمہارے منہ پر تھوک دیا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ میری بات کا یقین کریں سرکار، اس نے کچھ کہنے کی کوشش شروع کی ہی تھی کہ کانسٹیبل نے اس کی گردن پر 2 ہتھوڑ رسید کر دیا۔ یہ کانسٹیبل کی ایک پیشہ ورانہ خودکار حرکت تھی۔ میں نے کسی کارروائی کا اشارہ نہیں دیا تھا۔ فرید بخش کے حلق سے ایک اذیت ناک سسکاری خارج ہوئی۔ میں نے کانسٹیبل کو حکم دیا، قادر علی، اگر یہ بدبخت جھوٹ بولنے کی کوشش کرے تو مار مار کر اس کا کچومر نکال دینا۔ فرید گڑ گڑا کر معافی تلافی کے لیے فریاد کرنے لگا، میں بہت شرمندہ ہوں جناب، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ کیا غلطی ہو گئی تھی، وضاحت کرو، میں نے جارحانہ انداز میں کہا، میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ وہ جناب، وہ اٹک اٹک کر بتانے لگا، میں نے فردوس سے کہا تھا کہ بتاؤ مجھ میں کیا کمی ہے، جب تم راتوں کو چھپ چھپ کر ماسٹر جمشید سے ملتی ہو تو میں تمہیں برا کیوں لگتا ہوں؟ مجھ سے بھی ملا کرو، تم مجھے اچھی لگتی ہو، بہت پیاری لگتی ہو۔ اوئے کسی نیولے کی نسل، میں نے غصیلی نظروں سے کمبخت کو گھورا، ایک طرف تو تم یعقوب کو اپنا دوست اور بھائی کہتے ہو، دوسری طرف اس کی گھر والی سے بدتمیزی بھی کرتے رہے ہو، تمہیں یہ حرکت کرتے ہوئے ذرا سی بھی شرم نہیں آتی تھی؟ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا سرکار، وہ گھگھیانے لگا، مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ آئندہ تمہیں ایسا موقع ملے گا نا، تو تب غلطی کرو گے نا؟
मैंने इस्तेज़ाइया अंदाज में कहा, फिर धमकी भरे अंदाज में इजाफा किया, मैं तुम्हें ऐसा फिट करने वाला हूँ कि बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगी। रहम सरकार, रहम। वो दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, बस एक बार माफ कर दें जनाब, मैं अच्छा इंसान बनकर रहूंगा। तुम अगर अच्छा इंसान नहीं भी बनना चाहोगे तो हम तुम्हें बना देंगे, मैंने अटल अंदाज में कहा। हमने थाने में बंदेदा पुत्र बनाने की मशीन लगा रखी है, झूठे से झूठे इंसान को भी वो सच बोलने पर मजबूर कर देती है। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके फरीद बख्श के चेहरे पर उभरने वाले तासुरात का जायजा लिया और फिर इजाफा करते हुए कहा, तुम्हारा एक और संगीन झूठ भी मेरे सामने आ चुका है। कौन सा झूठ थानेदार साहब? वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखने लगा। ये झूठ कि तुमने याकूब को मुतवफ़ी और मास्टर जमशेद के ताल्लुकात के बारे में कुछ नहीं बताया था। मेरा मतलब समझ रहे हो ना? अपनी बात के अख्तिताम पर मैंने तेज नज़र से उसे घूरा तो वो जल्दी से बोला, जनाब वो तो मैंने। कांस्टेबल ने उसकी तशरीफ पर एक जोरदार लात रसीद की। वो एक करह के साथ मेरे सामने रखी चौबी मेज के साथ टकराया तो इसकी बाकायदा चीख निकल गई। कांस्टेबल किसी वहशी चील के माने जिस पर झपटा, फिर आने वाहिद में कॉलर से पकड़कर उसे सीधा खड़ा कर दिया और उसके गाल पर सन्नाटेदार तमाचा मारते हुए खूंखार अंदाज में गुर्राया, सीधी तरह से मलिक होरांदे सवालदार जवाब दे वरना बकरे की तरह उल्टा लटकाकर खाल उतार दूंगा। वो सहम कर दहशत भरी नजर से मुझे देखने लगा। मैंने धाड़ कर कहा, जबान खोलते हो या करूं कादिर अली के हवाले? सरकार, वो इज़्तिरारी अंदाज में बोला। फिर तो उसने भरे बाजार में मुझे चांटा मारकर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था, इसीलिए मैंने याकूब को मास्टर जमशेद और उसके ताल्लुकात पर खुलकर बता दिया था। और जब तुम्हारी लगाई हुई आग का कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ तो तुमने फिरदौस को मौत के घाट उतारकर आतिशे इंतकाम को ठंडा कर लिया और बाद में फिरदौस की लाश को बावर्ची खाने में बंद करके आग भड़का दी ताकि ये खुदकुशी का वाकया नजर आए। नहीं सरकार, वो तेजी से नफी में गर्दन झटकते हुए बोला, मैंने फिरदौस को कत्ल नहीं किया। आप मुझसे बड़ी से बड़ी कसम ले लें। तुम सारी कस्में अपने पास रखो, मैंने फैसलाकुन अंदाज में कहा। मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन की मोहलत दे सकता हूँ, अच्छी तरह सोच समझ लो। अगर तुम इकबाल जुर्म कर लोगे तो मैं तुम्हें कोई नर्म सज़ा दिलवाने की कोशिश करूँगा। फिर मेरे इशारे पर कांस्टेबल कादिर अली खींचते हुए उसे अपने साथ ले गया। वो बार बार दुहाई दे रहा था, मैं बेगुनाह हूँ, बेकसूर हूँ, मैंने फिरदौस को कत्ल नहीं किया। फरीद बख्श की मिन्नत, खुशामद और कस्में मुझे मुतासिर नहीं कर सकती थीं। उसके 2-3 बड़े बड़े झूठ मेरी पकड़ में आ चुके थे, लिहाजा मुझे उसकी बात का एतबार नहीं रहा था। जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ना आ जाती और जब तक फिरदौस के कातिल के हवाले से मुझे और कोई ठोस सुराग मिल ना जाता, मैं फरीद बख्श को छोड़ नहीं सकता था। शाम से पहले याकूब की माँ सुल्ताना मेरे पास आई और मुझसे दरख्वास्त की कि मैं उसके बेटे को छोड़ दूं। मैंने वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में उसे बता दिया, सुल्ताना, अगर तुम्हारा बेटा बेगुनाह और बेकसूर है तो समझो उसका एक बाल भी बाका नहीं होगा। मैंने अपनी तसल्ली करने के बाद उसे छोड़ दूंगा। थानेदार साहब, वो मिन्नत रेज लहजे में बोली, याकूब आज सुबह मेरे साथ शहर गया था और हम आपके सामने एक साथ ही वापस आए थे। मेरी बात का यकीन करें, जब हम सुबह घर से निकले तो फिरदौस अच्छी खासी और भली चंगी थी। इसकी मौत में याकूब का हाथ हो ही नहीं सकता। अल्लाह करे ऐसा ही हो, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, लेकिन मैं अपने फर्ज के आगे मजबूर हूँ सुल्ताना, बगैर तफ्तीश के इसे छोड़ नहीं सकता। आपने वहाँ घर में इतनी कड़ी पूछगछ की तो है इससे, वो शाकी लहजे में बोली। अब और कौन सी तफ्तीश बाकी है? मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, और इसके साथ ही मास्टर जमशेद का भी। मास्टर जमशेद? उसने उलझनज़दा नज़र से मुझे देखा। हाँ मास्टर जमशेद, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। मैंने इसे लाने के लिए अपना एक अहलकार रसूलपुर की जानिब रवाना किया हुआ है और वो रात किसी वक्त भी मास्टर को लेकर थाने पहुंच सकता है। लेकिन मास्टर का फिरदौस वाले वाक़े से क्या ताल्लुक? उसकी उलझन में बेपनाह इजाफा हो गया। मैंने गोलमोल जवाब दिया, ये तो उसके आने के बाद ही पता चलेगा। मास्टर जमशेद तो पिछली रात से पहले ही अपने गांव चला गया था, वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में बोली, और फिरदौस की मौत वाला वाक़या तो आज सुबह पेश आया है। कुछ भी है, मैंने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि इस केस के 4 खूंट हैं। नंबर 1 फिरदौस बीबी, जो अब इस दुनिया में बाकी नहीं रही। नंबर 2 याकूब। नंबर 3 फरीद बख्श।
یہ دونوں افراد اس وقت میری تحویل میں ہیں۔ اور نمبر 4 ماسٹر جمشید۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی اور پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، یہ چوتھا کھونٹ ماسٹر جمشید۔ میرے ہتھے چڑھ جائے تو پھر ہی میں کوئی فیصلہ کر سکوں گا کہ ان تینوں میں سے کس نے پہلے کھونٹ یعنی کہ فردوس بی بی کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ جب سلطانہ نے میرے رویے میں کوئی لچک نہ دیکھی تو مایوس ہو کر واپس چلی گئی۔ میرا یہ پورا دن نہایت افراتفری میں گزرا تھا، اور جیسا کہ میں کہانی کی ابتدا میں بتا چکا ہوں کہ ان دنوں میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، لہٰذا میں تھانے میں بیٹھ کر ASI شکور کا انتظار کرنے کے بجائے اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ ان لمحات میں بہت زیادہ تھکاوٹ اور نکاہت محسوس کر رہا تھا۔ اگلی صبح جب میں سو کر اٹھا تو تر و تازہ اور حشاش بشاش اور چاق چوبند تھا۔ معمولات سے فارغ ہونے کے بعد میں وردی پہن کر جب تھانے پہنچا تو پتہ چلا کوئی آدھا گھنٹہ پہلے ASI شکور رسول پور سے واپس آیا تھا۔ رسول پور نامی یہ چھوٹا سا گاؤں میرے تھانے سے لگ بھگ 15 میل کے فاصلے پر شمال میں واقع تھا۔ میں نے فوراً شکور کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس نے آ کر مجھے سلیوٹ کیا۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور پوچھا، شکور، رسول پور کی کیا رپورٹ ہے؟ رپورٹ اچھی نہیں ہے ملک صاحب، اس نے مایوسی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم ماسٹر جمشید کو اپنے ساتھ لے کر نہیں آئے؟ جناب، ماسٹر جمشید وہاں ہوتا تو میں اسے اپنے ساتھ لے کر آتا نا، ASI نے جواب دیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ تو پرسوں شام سے پہلے یہاں سے اپنے گاؤں چلا گیا تھا، رسول پور پہنچتے ہوئے اسے اتنی دیر تو نہیں لگتی؟ ملک صاحب، جو حقیقت تھی وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی، وہ سادگی سے بولا۔ میں رسول پور سے ماسٹر کے چھوٹے بھائی اور چاچے کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، باقی تفصیل آپ ان سے پوچھ لیں۔ میں نے فوراً مذکورہ دونوں افراد کو اپنے پاس بلا لیا۔ ماسٹر جمشید کے چھوٹے بھائی کا نام حنیف اور عمر 20 سال کے آس پاس تھی، جبکہ ماسٹر کا چاچا باسط علی 50 سے زیادہ کا نظر آتا تھا۔ ان دونوں کے بیان کے مطابق ماسٹر جمشید جمعے کی رات رسول پور نہیں پہنچا تھا۔ حنیف نے بڑے واضح اور یقینی انداز میں مجھے بتایا کہ ماسٹر جمشید کا ان دنوں رسول پور جانے کا کوئی پروگرام بھی نہیں تھا۔ اس صورتحال نے مجھے مغبسے میں ڈال دیا۔ سلطانہ کے بیان کے مطابق ماسٹر جمشید جمعے کی شام اپنے گاؤں جانے کا بتا کر اس کے گھر سے نکلا تھا، اور اب اسے پیر کی دوپہر کو واپس آنا تھا، یعنی وہ پیر کی صبح براہ راست اسکول پہنچتا اور پھر اسکول کی چھٹی کے بعد وہ سلطانہ کے گھر آتا۔ لیکن یہاں تو ساری کہانی ہی الٹی ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یا تو ماسٹر جمشید نے سلطانہ سے جھوٹ بولا تھا اور وہ رسول پور کے بجائے کسی اور طرف نکل گیا تھا، اور پھر سلطانہ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا شاید۔ سلطانہ کی غلط بیانی کے بارے میں سوچتے ہوئے لامحالہ ذہن ایک خطرناک زاویے پر مڑ جاتا تھا، اور خود بخود یہ خیال جنم لیتا تھا کہ کہیں یعقوب نے اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ اس کے آشنا یعنی کہ ماسٹر جمشید کو بھی تو ٹھکانے نہیں لگا دیا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کام میں سلطانہ بھی اس کی شریک کار رہی ہو۔ میں نے ماسٹر جمشید کے چھوٹے بھائی اور چاچے سے تفصیلی پوچھ گچھ کی، لیکن ماسٹر کی پراسرار گمشدگی کے سلسلے میں کوئی سرا میرے ہاتھ نہ لگ سکا۔ بالآخر مایوس ہو کر میں نے انہیں فارغ کر دیا۔ وہ دونوں اس سلسلے میں بھی میری رہنمائی کرنے سے قاصر تھے کہ ماسٹر جمشید رسول پور نہیں پہنچا تھا تو پھر وہ کہاں جا سکتا تھا۔ ان دونوں کے مطابق ماسٹر کی زندگی اسکول اور رسول پور تک محدود تھی۔ بڑی عجیب و غریب اور الجھن زدہ صورتحال تھی، جس میں ابھی تک میری تفتیش کی گاڑی 0 پوائنٹ پر کھڑی تھی۔ اب تک میں نے اس کیس سے متعلق لوگوں سے جو بھی پوچھ گچھ کی تھی، اس کے نتیجے میں کوئی کارآمد بات نکل کر سامنے نہیں آئی تھی۔ اب جا کر مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ ہی کا انتظار کرنا تھا۔ مذکورہ رپورٹ پیر کی صبح فردوس بی بی کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش کے ساتھ مجھے موصول ہو گئی۔ میں نے رپورٹ کو کھول کر پڑھا تو حیرتوں کا گویا ایک نیا در مجھ پر کھل گیا۔ میں نے وہ رپورٹ اوپر سے نیچے تک 2-3 مرتبہ پڑھی، لیکن اس کے الفاظ اور الفاظ کے مفہوم میں سرِ منہ فرق واقع نہ ہوا۔ میں سر پٹک کر رہ گیا۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق متوفی فردوس بی بی کی موت جل کر نہیں بلکہ پیٹ کے کسی مرض کے سبب واقع ہوئی تھی، اور یہ واقعہ 4 روز پہلے کا تھا۔ میرا سر چکرا کر رہ گیا۔ یہ بات ہی ایسی تھی۔ میری جگہ اور بھی کوئی ذی ہوش شخص اس رپورٹ کا مطالعہ کرتا تو اس کی بھی دماغی کیفیت وہی ہوتی جو ان لمحات میں میری تھی۔ میری معلومات اور شواہد کے مطابق فردوس بی بی کی موت ہفتے کی صبح واقع ہوئی تھی۔
जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसकी मौत के लिए जुमेरात का दिन मुकर्रर कर रही थी। मेरे जहन में एक ख्याल बिजली के कौंदे के मानिंद चमका। मैं जिस सोख्ता लाश को मुतवफ़्फ़ी फिरदौस बीबी समझ रहा हूँ, कहीं वो किसी और बदनसीब की लाश तो नहीं? इस सवाल के साथ ही एक और सवाल ने बड़े खतरनाक अंदाज में सर उभारा। अगर सुल्ताना के बावर्ची खाने से मिलने वाली सोख्ता लाश फिरदौस बीबी की नहीं, तो फिर फिरदौस बीबी कहाँ है? इस सनसनीखेज सवाल का जवाब इसी वक्त मिल सकता था जब ये पता चल जाता कि जुमेरात को पेट के मर्ज से मौत को गले लगाने वाली औरत कौन थी, और इस नौयत का जवाब मुझे एक ही जगह से मिल सकता था। मैंने एक हंगामी ख्याल के तहत एएसआई से कहा, शकूर, फौरन एक टांगे का बंदोबस्त करो, हम कब्रिस्तान जा रहे हैं। मलिक साहब, फिरदौस की पोस्टमार्टम शुदा लाश तो थाने में रखी है, इसकी तदफीन हमारी जिम्मेदारी तो नहीं? क्या तुम कानूनी जिम्मेदारियों और महकमा जाती फराइज को मुझसे ज़्यादा जानते हो? मैंने ठहरे हुए लहजे में सवाल किया। वो गड़बड़ा कर रह गया। मेरा ये मतलब नहीं था मलिक साहब। बस तो फिर मैं जो कह रहा हूँ वही करो फौरन, मैंने कहा। ओके मलिक साहब, उसने फर्माबरदारी से कहा और कमरे से निकल गया। थोड़ी ही देर के बाद हम कब्रिस्तान में थे। गोरकन इनायतुल्लाह ने मुझे अपनी जानिब बढ़ते हुए देखा तो जल्दी से मेरे पास आया और तशवीश भरे लहजे में सलाम करने के बाद बोला, खैरियत तो है जनाब, आज सुबह सुबह इधर का चक्कर कैसे लग गया? मैंने उसके सलाम का जवाब दिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इनायतुल्लाह, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ। इसका रंग उड़ गया। वो बेहद हिरासा लहजे में बोला, सरकार, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई? मुझे पता चला है कि तुम मुर्दों का कारोबार करते हो। मैं कुछ समझा नहीं जनाब। वो हक्का बक्का मुझे देखता चला गया। मैंने रास्ते में एएसआई शकूर को अपनी कब्रिस्तान आमद के बारे में तफसीलन बता दिया था, लिहाजा उसके जहन में कोई उलझन बाकी नहीं थी। उसने कड़कदार आवाज में इनायतुल्लाह से कहा, तुम सब समझ जाओगे जब थाने में ले जाकर तुम्हें तफ्तीश की चक्की में डाला जाएगा। इनायतुल्लाह दोनों हाथ जोड़कर खिंगाने लगा। माई बाप, मैंने सारी जिंदगी इसी कब्रिस्तान में गुजारी है। मुझसे पहले मेरा बाप और इससे पहले मेरा दादा इस कब्रिस्तान का गोरकन हुआ करता था। हमने कभी किसी लाश का कफन तक नहीं चुराया। मुर्दे बेचना तो बहुत दूर की बात है। मैं इसके अल्फाज की सच्चाई से समझ गया कि वो दरोग कोई से काम नहीं ले रहा था, लिहाजा इसे डराने धमकाने के अंदाज को तर्क करके मैंने नहायत ही संजीदा लहजे में इस्तफसार किया, इनायतुल्लाह, ज़रा सोच कर बताओ, पिछले एक हफ्ते में तुमने कब्रिस्तान में कितने मुर्दों को दफन किया है? इसमें सोचने वाली कौन सी बात है सरकार? वो जल्दी से बोला, पिछले एक हफ्ते में सिर्फ एक ही मुर्दा यहाँ लाया गया था और मैंने वही एक लाश दफन की है। क्या वो किसी औरत की लाश थी? मैंने इज़्तिरारी लहजे में पूछा। जी हाँ, उसने इस बात में जवाब दिया। इस मरने वाली का नाम क्या था? रिजवाना, इनायतुल्लाह ने बताया। वो इश्तियाक नामी एक छोटे जमींदार की बीवी थी। रिजवाना का इंतकाल कैसे हुआ था? मेरे सवालात ने गोरकन को बुरी तरह उलझा कर रख दिया था। वो थूक निगलते हुए बोला, मुझे पता चला है कि वो ठीक ठाक रात को सोई थी। आधी रात के वक्त उसके पेट में शदीद किस्म का दर्द उठा। फौरन हकीम साहब को बुलाया गया। हकीम साहब ने दर्द कॉलेंज बताया और खाने के लिए दवा दे दी। किस्सा मुख्तसर, हकीम साहब की दवा ने काम नहीं किया और इस दर्द ने रिजवाना की जान ले ली। गोरकन का बयान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज वजह मौत की तस्दीक कर रहा था। इन लम्हात में मेरा जहन बर्क रफ्तारी से दौड़ रहा था। मैंने इनायतुल्लाह से कहा, मुझे फौरन रिजवाना की कब्र पर ले चलो और इस फौरन से पेशतर रिजवाना के घर वाले को यहाँ बुलाने के लिए किसी बंदे को उसकी तरफ रवाना कर दो। अच्छा जी, अभी करता हूँ। वो जल्दी से मेरे एहकाम की तामील में लग गया। थोड़ी देर के बाद मैं एएसआई शकूर और गोरकन इनायतुल्लाह एक ताज़ा बनी हुई कब्र के पास मौजूद थे। मेरी उकाबी निगाह ने देखते ही अंदाज़ा कायम कर लिया कि इस कब्र को खोलने के बाद दोबारा बंद किया गया था। मैंने अपने इस अंदाजे की तस्दीक जब इनायतुल्लाह से चाही तो वो तशवीशनाक नज़र से मज़कूरा कब्र का जायज़ा लेते हुए बोला, मुझे भी यही लग रहा है सरकार, तुम जल्दी से कब्र खोदने के आलात लेकर यहाँ आ जाओ। मैंने तहमाना अंदाज में कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि रिजवाना की कब्र के अंदर क्या है। गोरकन ने ताज्जुब खेज नज़र से मुझे देखा और सरसराती हुई आवाज़ में बोला, जनाब, रिजवाना की कब्र में उसकी लाश के सिवा और क्या हो सकता है? अभी 4 दिन पहले ही मैंने अपने हाथों से उसे यहाँ दफन किया है और तुम इस अमर की भी तस्दीक कर रहे हो कि रिजवाना की कब्र को खोला गया है? जी हाँ, ऐसा ही नजर आ रहा है। वो कब्र को खूरते हुए बोला, बस तो फिर तुम मुझसे कोई बहस ना करो।
میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں یہاں اپنا قیمتی وقت برباد کرنے نہیں آیا ہوں۔ تم سے جو کہا جا رہا ہے فوراً اس پر عمل کرو۔ اچھا جی، وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ کرتا ہوں سرکار۔ جب تک عنایت اللہ اپنے مخصوص کمرے میں سے کدال اور پھاوڑا وغیرہ لے کر آتا، درد کولن سے ہلاک ہونے والی رضوانہ کا گھر والا یعنی کہ اشتیاق زمیندار بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ جب اشتیاق کو یہ پتہ چلا کہ میں اس کی بیوی کی قبر کھدوانے کا ارادہ رکھتا ہوں تو وہ سراپا احتجاج بن گیا۔ تھانے دار صاحب، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، ابھی تو میری بیوی کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، آپ یہ کیا ظلم کر رہے ہیں؟ اشتیاق، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، تم میرے جس عمل کو ظلم کا نام دے رہے ہو وہ انتہائی ضروری تفتیش ہے۔ مجھے 101% یقین ہے کہ کسی نے تمہاری بیوی کی لاش کو غائب کر دیا ہے۔ اب اس قبر میں کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ جج جی، وہ مارے حیرت کے ہکلا کر رہ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ابھی تمہاری آنکھوں کے سامنے میرے اس یقین کی تصدیق ہو جائے گی۔ لیکن رضوانہ کی لاش کہاں جا سکتی ہے؟ وہ بے بسی کے عالم میں مجھ سے پوچھنے لگا۔ اسے قبر کھول کر کون چرائے گا؟ اشتیاق احمد، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جہاں تک تمہاری بیوی کی لاش کا تعلق ہے تو وہ اس وقت تھانے میں رکھی ہے، تمہیں آج ہی اسے دوبارہ دفنانا پڑے گا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی اور پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، اور جہاں تک لاش کو چرانے والے کا سوال ہے، اس کا سراغ بھی میں بہت جلد لگا لوں گا۔ پھر میں نے گورکن کو اشارہ کیا کہ وہ کھدائی کا کام شروع کر دے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے مختصر مگر جامع الفاظ میں اشتیاق احمد کو تمام تر حالات کے پس منظر سے آگاہ کر دیا۔ وہ فردوس بی بی کے گھر میں ہونے والی آتش زنی کے واقعے سے اچھی طرح واقف تھا۔ جب اسے پوسٹ مارٹم رپورٹ اور ماسٹر جمشید کی پراسرار گمشدگی کے بارے میں بتایا گیا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس دوران میں عنایت اللہ نے رضوانہ کی قبر بڑی مہارت سے کھول ڈالی تھی اور میرے اندازے کے عین مطابق وہ قبر رضوانہ کی لاش سے خالی تھی۔ اس صورتحال نے جہاں مجھے ایک نتیجے پر پہنچایا تھا، وہاں اشتیاق کو گہری تشویش میں ڈال دیا تھا۔ میں نے دوستانہ انداز میں اس سے کہا، اشتیاق، فردوس بی بی کو مردہ ثابت کرنے کے لیے تمہاری بیوی کی لاش کی بڑی بے دردی سے بے حرمتی کی گئی ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، میں اس کے ذمہ دار کو ایسی عبرتناک سزا دلاؤں گا کہ تمہارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ گلوگیر آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، ایک تو رضوانہ پہلے ہی قیامت خیز تکلیف اٹھا کر مری تھی، اوپر سے اس کی لاش کو جلا کر کوئلہ بنا دیا گیا۔ میں یعقوب کی بیوی فردوس کی سوختہ لاش کو دیکھنے اس کے گھر گیا تھا، مجھے کیا پتا تھا وہ میری ہی بیوی کی لاش تھی۔ بات پوری کرتے کرتے اس کی سسکاری نکل گئی۔ میں نے اس کا کندھا تھپ تھپایا اور تسلی بھرے لہجے میں کہا، جو ہوا اسے قدرت کی مرضی سمجھ کر برداشت کرنا پڑے گا، لیکن یہ میرا تم سے وعدہ ہے، میں نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا، کہ میں بہت جلد اس شخص کو قانون کی گرفت میں لا کر نمونہ عبرت بنا دوں گا جس نے تمہاری بیوی کی لاش کی بے حرمتی کی ہے۔ جناب، اب تو ساری بات کھل چکی ہے، وہ اپنے آنسو پوंچھتے ہوئے بولا، یہ سارا کیا کرایا اس نامراد ماسٹر جمشید ہی کا ہے۔ ہاں، حالات و واقعات تو اسی جانب کبھی اشارہ کرتے ہیں، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن ماسٹر جمشید فی الحال مفرور ہے، وہ ہتھے چڑھ جائے تو پھر ہی کوئی حتمی بات کہی جا سکے گی۔ اچھا جی، وہ ویران آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تم ابھی میرے ساتھ تھانے چلو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں ضروری کارروائی کے بعد رضوانہ کی لاش تمہارے حوالے کر دوں گا۔ میرے لیے کیا حکم ہے مائی باپ؟ گورکن عنایت اللہ کا استفسار میری سماعت سے ٹکرایا تو میں نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ استادہ کدال کے ہتھے پر ہاتھ جمائے کھڑا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہیں رک کر تھوڑا انتظار کرو اشتیاق، اپنی بیوی کی لاش کے ساتھ دوبارہ قبرستان آنے والا ہے تو میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ رضوانہ کی ایک بار پھر تدفین کرنی ہے۔ وہ اس بات میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ میں اشتیاق کو لے کر تھانے آ گیا۔ تھوڑی دیر میں پورے علاقے میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ کسی بدبخت نے رضوانہ کی لاش اس کی قبر میں سے نکال کر جلا ڈالی ہے۔ اس خبر کے ساتھ مذکورہ کمبخت کا نام بھی ہر چھوٹے بڑے کی زبان پر چڑھ گیا، اور یہ بھی کہ یعقوب کی ووٹی ماسٹر جمشید کے ساتھ نس گئی ہے۔ جی ہاں، یہی وہ تلخ نتائج تھے جو میری اب تک کی تحقیق کے بعد سامنے آئے تھے۔ ماسٹر جمشید بڑے پراسرار انداز میں غائب ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی فردوس بی بی کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔
अगलब इम्कान यही था कि मास्टर जमशेद ही फिरदौस बीबी को कहीं भगा ले गया था, और इसके अलावा भी सोच के आगे एक राह खुली नजर आती थी, और ये बड़ी खतरनाक राह थी। यानी ये भी तो हो सकता था कि याकूब ने गैरत में आकर मास्टर जमशेद और फिरदौस बीबी को खुफिया तौर पर ठिकाने लगाने के बाद इनकी लाशें कहीं दबा दी हों। कुछ भी नामुमकिन नहीं था। ताज़ा तरीन हालात की रोशनी में मैंने फिलहाल याकूब को तो सरकारी मेहमान खाने ही में रखा और फरीद बख्त को छोड़ दिया। ये बात अब वाज़ेह हो चुकी थी कि इस मामले में इसका कोई अमल दखल नहीं था। अब मुझे सबसे पहले तो मास्टर जमशेद की तलाश थी। वो हाथ लग जाता तो फिर फिरदौस का खुरा खोज लगाना भी आसान हो जाता। मैंने आज तक मास्टर जमशेद से मुलाकात नहीं की थी और न ही इसे कहीं देखा था। अलबत्ता मैंने सुल्ताना की बैठक में एक दीवार पर उसकी तस्वीर टंगी देखी थी। मैंने इस फ्रेम के बारे में जब सुल्ताना से सवाल किया तो उसने बताया था कि वो मास्टर जमशेद की फ़ोटो थी। पहली फुर्सत में मैंने एक फोटोग्राफर के ताउन से मास्टर जमशेद की तस्वीर के 4-5 प्रिंट तैयार करवा लिए ताकि इनकी मदद से मास्टर की तलाश के काम में तेज़ी लाई जा सके। मास्टर जमशेद को इलाके का हर बच्चा और बड़ा बखूबी पहचानता था। वो वहाँ के अकलौते प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता था, इसलिए भी सब उसके सूरत आशना थे। चुनाचे इलाके के अंदर तो मुझे उसकी फ़ोटोज़ से मदद लेने की ज़रूरत पेश नहीं आई। इब्तिदाई तहकीक के नतीजे में ये बात सामने आई कि गुज़िश्ता जुमे की शाम मास्टर जमशेद किसी टांगे पर बैठकर अपने गांव की तरफ गया था। थोड़ी सी कोशिश के बाद मैंने इस टांगे वाले का पता चला लिया जो मास्टर जमशेद को लेकर गया था। उसका नाम न्याज था। मैंने न्याज को थाने बुला लिया। वो खासा घबराया हुआ नजर आता था। मैंने इसे बैठने के लिए कहा और पूछा, न्याज, क्या ये सच है कि जुमे की शाम मास्टर जमशेद तुम्हारे टांगे में बैठकर रसूलपुर गया था? ये बात आधी सच है जनाब, वो सहमे हुए अंदाज में बोला। आधी सच? मैंने घूर कर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? जनाब, मतलब ये कि मास्टर जी मेरी टांगे पर सवार तो हुए थे, लेकिन वो रसूलपुर नहीं गए। रसूलपुर नहीं गए तो फिर कहाँ गए? मैंने चौंक कर पूछा। उसका घर तो रसूलपुर में है और वो जहाँ जब भी जाता है स्कूल से सीधा रसूलपुर ही जाता है। ये बात मुझे पता है जनाब, मैंने खुद कई बार इन्हें रसूलपुर तक पहुंचाया है। ये गांव मेरे रूट पर पड़ता है। नियाज कोचवान वजाहत करते हुए बोला। वो जब फैज़ाबाद उतरने लगे तो मैंने पूछा भी था। अच्छा, तो वो फैज़ाबाद पर उतरा था? नियाज की बात मुकम्मल होने से पहले ही मैंने सवाल कर दिया। फैज़ाबाद रसूलपुर के रास्ते में पड़ने वाला पहला गांव था और ये मेरे थाने से सिर्फ 3 मील के फासले पर वाक़ था। न्याज ने मेरे इस्तफसार के जवाब में बताया, जी थानेदार साहब, वो फैज़ाबाद ही में उतरे थे। फैज़ाबाद में उतारते वक्त तुमने उससे क्या पूछा था? मैंने न्याज कोचवान की आंखों में देखते हुए सवाल किया। अभी तुमने बताया है ना? जी जी जी, वो उस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने इनसे पूछा कि वो रसूलपुर क्यों नहीं जा रहे, तो उन्होंने बताया कि कल स्कूल है रसूलपुर से, वो हफ्ते 10 दिन के बाद जाएंगे। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज की। तुमने पूछा नहीं फैज़ाबाद में वो किसके पास जा रहा है? नहीं जनाब, उसने बड़ी सादगी से नफ़ी में गर्दन हिला दी। न मैंने पूछा न उन्होंने बताया। मैंने मज़ीद 2-4 सवालात के बाद न्याज कोचवान को फारिग कर दिया। इसके बाद मैंने 2-2 अहलकारों पर मुश्तमिल 3 पार्टियां तरतीब दी और इन्हें मास्टर जमशेद की तस्वीर देकर आसपास के इलाकों में फैला दिया ताकि वो मास्टर का सुराग लगाने की कोशिश करें। इसी रोज़ दोपहर के बाद मैं हवलदार मौला बख्श के साथ एक टांगे में बैठकर फैज़ाबाद की जानिब रवाना हो गया। जैसा कि मैंने ऊपर बताया है, फैज़ाबाद मेरे थाने से महज 3 मील की दूरी पर वाक़ था। जल्द ही हम फैज़ाबाद पहुंच गए। टांगे को मैंने एक जगह रुकवाकर मास्टर जमशेद के बारे में पूछगछ की। चंद मिनट की कोशिश के बाद मैं ये जानने में कामयाब हो गया कि फैज़ाबाद में मास्टर अयाज मेहर नामी एक काश्तकार से मिलने आया था। मैं मौला बख्श के हमरा अयाज मेहर के घर पहुंच गया। वो एक मुतवस्सित दर्जे का घर था। अयाज मेहर इस वक्त घर पर ही मिल गया। मैंने अपना तारुफ कराने के बाद इससे पूछा, मेहर साहब, क्या मास्टर जमशेद जुमे के रोज़ रात में आपसे मिलने के लिए आया था? जी हाँ, आया था, उसने जवाब दिया। वो आपके पास से वापस कब गया था? मैंने गहरी संजीदगी से पूछा। और ये भी बताएं कि वो कहाँ गया था? मेरे पे दर पे सवालात ने मेहर को तशवीश में मुब्तला कर दिया। जवाब देने के बजाय उल्टा उसने मुझसे पूछ लिया, थानेदार साहब, खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं है मेहर साहब। क्या मास्टर जमशेद जुमे के रोज़ रात में आपसे मिलने आया था? जी हाँ, आया था, उसने जवाब दिया। वो आपके पास से वापस कब गया था?
मैंने गहरी संजीदगी से पूछा। और ये भी बताएं कि वो कहाँ गया था। मेरे पे दर पे सवालात ने मेहर को तशवीश में मुब्तला कर दिया। जवाब देने के बजाय उल्टा उसने मुझसे पूछ लिया, थानेदार साहब खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं है मेहर साहब, मैंने ठहरे हुए अंदाज में बताया, वरना मैं मास्टर की तलाश में यहाँ ना आता। उसके चेहरे पर नजर आने वाली तशवीश और गहरी हो गई। मैंने निहायत ही मुख्तसर अल्फाज में सुल्ताना के घर में पेश आने वाले वाक़ये के बारे में उसे बताया। यह तो मुझे पता चल चुका था कि अयाज मेहर के साथ मास्टर के दोस्ताना मरासिम थे। वो गाहे बगाहे इससे मिलने आते रहता था। ओह, मेरे बात के इख्तिताम पर उसने कहा, मास्टर ने मुझसे तो ऐसी कोई बात नहीं की थी। वो जुमे के दिन रात को मेरे पास आया और दूसरी सुबह यह कहकर वापस चला गया कि इसे स्कूल पहुंचना है। इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता। मैंने अयाज मेहर को फिर तो मास्टर जमशेद के खुफिया ताल्लुकात के बारे में भी बताया और आखिर में कहा, रिजवाना की लाश को कब्र से निकालकर और सुल्ताना के घर के बावर्ची खाने में रखकर इसलिए जलाया गया है ताकि ये तासुर मिले कि फिरदौस बीबी जलकर हलाक हो चुकी है और ये खतरनाक काम वही शख्स कर सकता है जो फिरदौस बीबी में दिलचस्पी रखता हो। मेरी नज़र में वो बंदा मास्टर जमशेद के सिवा कोई और नहीं हो सकता। मुझे बड़ी शिद्दत से मास्टर की तलाश है। आपकी बातों से मुझे सख्त हैरत हो रही है थानेदार साहब, वो ताज्जुब खेज नज़र से मुझे देखते हुए बोला। मैं मास्टर को ऐसा नहीं समझता। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो ऐसी घिनौनी हरकत भी कर सकता है। ये यकीन तो वहाँ के बेशतर अफराद को भी नहीं आ रहा मेहर साहब, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। ख़ासतौर पर सुल्ताना तो इस बात को मानने के लिए कतन तैयार नहीं कि मास्टर जमशेद उसकी बहू को कहीं भगा ले गया होगा। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली और फिर इजाफा करते हुए पूछा, मेहर साहब, आप मास्टर जमशेद और फिरदौस बीवी के दरमियान जारी इश्क के बारे में तो बहुत कुछ जानते होंगे। इसके साथ आपकी अच्छी खासी दोस्ती थी। दोस्ती वाली बात में तो किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं जनाब, वो एक ठहरी हुई सांस छोड़ते हुए बोला। लेकिन ये बात आपकी ज़बान से मुझे पता चल रही है कि वो मोहब्बत के किसी मामले में भी उलझा हुआ था। हैरत मेहर साहब, मैंने शक-ज़दा नज़र से उसकी तरफ देखा। जो हकीकत थी वो मैंने आपको बता दी जनाब। मैं लगभग आधा घंटा अयाज मेहर के पास रुका और घुमा फिराकर मुख्तलिफ ज़ावियों से मास्टर जमशेद के बारे में सवाल करता रहा। जब काम की कोई बात मेरे हिस्से में ना आई तो मैंने वापसी की राह इख्तियार की। मेरा जहन बुरी तरह उलझ कर रह गया था। मास्टर जमशेद जुमे के रोज़ सुल्ताना को ये बताकर घर से निकला था कि वो 2 दिन के लिए अपने गांव रसूलपुर जा रहा है। वो पीर की सुबह अपने घर से सीधा स्कूल पहुंचेगा और छुट्टी के बाद घर आएगा। एक बात का जिक्र मैं भूल गया कि मैंने प्राइमरी स्कूल के बाकी असातिज़ा से भी मास्टर जमशेद के बारे में पूछगछ की थी। इनमें से भी किसी के इल्म में ये बात नहीं थी कि मास्टर 2 रोज़ के लिए अपने गांव जा रहा है। इसका मतलब यही था कि उसने सुल्ताना से गलत बयानी की थी। जब कोई इंसान झूठ का सहारा लेता है तो बुनियादी तौर पर उसके पेश नज़र 2 बातें होती हैं, या कम से कम 2 में से एक बात ज़रूर होती है। नंबर 1, वो अपने किसी सरसद जुर्म की पर्दापोशी के लिए झूठ बोल रहा होता है। नंबर 2, वो कोई जुर्म करने जा रहा होता है और गलत बयानी के ज़रिए अपने काम को आसान बनाने की कोशिश करता है। मेरे ख्याल में मास्टर जमशेद के मामले में ये दोनों सूरतें मुमकिन थीं। अगले रोज़ एक अहम इत्तला मुझ तक पहुंची। मैंने गुज़िश्ता रोज़ 2 पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल जो 3 कमेटियां तरतीब दी थीं, इनमें से एक पार्टी ने थाने आकर मुझे बताया कि हफ्ते की दोपहर एक शख्स ने मास्टर जमशेद को लारी अड्डे की तरफ जाते देखा था। उसके साथ एक बुर्कापोश औरत भी थी। ये इत्तला खासी चौंका देने वाली थी। मैंने मज़कूरा पार्टी से पूछा, वो बंदा कौन है जिसने इन्हें लारी अड्डे की तरफ जाते हुए देखा था? जनाब, उसका नाम तुफैल है, मुझे बताया गया। हम उसे अपने साथ लेकर आए हैं। तुफैल को फ़ौरन मेरे सामने पेश करो, मैंने अपने तहकमाना अंदाज में कहा। थोड़ी देर के बाद तुफैल नामी वो बंदा मेरे सामने हाजिर था। तुफैल की इस इलाके में किराने की दुकान थी और वो सौदा लेने के लिए अक्सर व पेशतर शहर की तरफ जाता रहता था। वो थोक की दुकानों से सौदा लाकर अपने किराना स्टोर पर बेचा करता था। मैंने गहरी नज़र से सर तापा तुफैल का जायज़ा लिया, फिर कदरे सख्त लहजे में इस्तफसार किया। हाँ भाई तुफैल, तुमने हफ्ते की दोपहर मास्टर जमशेद को लारी अड्डे की तरफ जाते देखा था? जनाब, सिर्फ देखा ही नहीं था बल्कि वो मेरे साथ ही शहर तक गया था, वो इंकिशाफ अंगेज लहजे में बोला। मुझे सौदा लेने शहर जाना था। मैं जिस बस में सवार था इसी में 2 सीटें थीं। आगे मास्टर जमशेद भी बैठा हुआ था। ओह,
मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हें यकीन है कि वो मास्टर जमशेद ही था? जी जनाब, पक्का यकीन है, वो बड़े एतमाद से बोला। आपके सिपाहियों ने मुझे जो तस्वीर दिखाई है वो वही बंदा था। मैं वैसे भी मास्टर जमशेद को शक्ल से पहचानता हूँ, और इसके साथ एक बुर्कापोश औरत भी थी। जी हाँ, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। इन लोगों ने तुम्हें भी देखा था? नहीं जनाब, उसने नफी में गर्दन हिला दी। वो दोनों इस वक्त बस में सवार हुए जब बस चलने वाली थी। उन्होंने किसी पर ध्यान नहीं दिया और जल्दी से 2 वाली खाली सीट पर बैठ गए थे। और वो दोनों तुम्हारे साथ ही शहर पहुंचे थे? जी थानेदार साहब, क्या तुम बता सकते हो कि शहर पहुंचकर उन्होंने किस तरफ का रुख किया था? मैंने सनसनाते हुए लहजे में इस्तफसार किया। जनाब, आखिरी बार मैंने इन्हें एक टांगे वाले के पास खड़े देखा था, तो फैलने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। मास्टर जमशेद कोचवान से शरीफ कॉलोनी जाने का कह रहा था और वो सालिम टांगा लेकर जाना चाहता था। कोचवान का इसरार था कि अगर वो इनके अलावा किसी और सवारी को नहीं बिठाएगा तो इन्हें ज़्यादा किराया देना होगा। इनमें किराए के मामले पर बातचीत चल रही थी कि मैं आगे बढ़ गया। यानी तुम वसूख से नहीं कह सकते कि वो लोग इसी टांगे में बैठे थे या नहीं? मैंने पूछा। जी, मैं इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकता। क्या तुम इस टांगे वाले को जानते हो? नहीं जनाब, उसने नफी में गर्दन हिला दी। मैं अपने इलाके के तमाम कोचवानों को तो जानता हूँ, मगर शहर में चलने वाले कोचवानों से मेरी वाकफियत नहीं, और इसकी एक ख़ास वजह है। थोड़ी देर को रुककर उसने सांस दुरुस्त की और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, मुझे कभी शहर की टांगों में बैठने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। मैं सौदा वगैरह लेने शहर जाता हूँ और ये सारी दुकानें लारी अड्डे के नज़दीक ही हैं। मैं पैदल ही चलते हुए वहाँ पहुँच जाता हूँ। तुम इस कोचवान का खुलिया और वज़े तो बयान कर सकते हो ना, जिसके साथ मास्टर जमशेद उस दिन मोलतोल कर रहा था? मैंने अहम नुक्ते की तरफ आते हुए कहा। इसको तो तुमने अच्छी तरह से देखा होगा। जी हाँ बिल्कुल, उसने बड़े वसूख से सर हिलाया, फिर एक ही सांस में बताता चला गया। उम्र 50 के करीब, रंगत गंदमी, दुबला पतला और ऊंचा लंबा, सर के बाल उड़े हुए, दरमियान से झलकती टिंड, और सबसे खास उसकी पहचान ये है कि उसका एक बाजू कटा हुआ है, यानी कि वो टुंडा कोचवान है। बस बस, काम हो गया, मैंने तुफैल के बयान करदा हुलिये को नोट करते हुए जोश भरे अंदाज में कहा। मैं तुम्हारी बताई हुई निशानियों की मदद से बड़ी आसानी के साथ इस कोचवान तक पहुंच जाऊंगा। मैंने तुफैल के ताउन का शुक्रिया अदा किया और उसे जाने की इजाज़त दे दी। ठीक 1 घंटे बाद मैं एएसआई शकूर के हमरा बस में बैठकर शहर की जानिब रवां था। हम पूरी तैयारी के साथ थाने से रवाना हुए थे। शकून ने मेरे हाथ में एक थैला पकड़ाया हुआ था जिसके अंदर 2 हथकड़ियाँ थीं। पता नहीं क्यों मेरे अंदर से एक आवाज़ उठ रही थी कि मैं इस मिशन में कामयाब लौटूंगा। दोपहर के वक्त हम शहर पहुंच गए। गर्मी इस रोज़ भी अपनी इंतहाओं को छू रही थी, लेकिन मेरे पेश नज़र एक अहम काम था, इसलिए मौसम की सख्ती मेरी अज़ाइम की राह में कोई रुकावट खड़ी नहीं कर पा रही थी। इस वक्त मुझे ज़रा सी भी कमज़ोरी या नकाखत महसूस नहीं हो रही थी। मैंने एएसआई शकूर को एक ख़ास मकसद के तहत अपने साथ रखा था, और वो मकसद ये था कि वो मास्टर और फिरदौस का सूरत आशना था। शहर पहुंचते ही मैंने सीधा टांगा स्टैंड का रुख किया। वहां इस वक्त 2-3 टांगे खड़े थे। मेरी मुतलाशी नज़र ने पहली फुर्सत में इन कोचवानों के बाजुओं को टटोला। इनमें से कोई भी टुंडा नहीं था। मैं और शकूर इस वक्त अवामी लिबास में थे, लिहाजा हमें देखकर किसी ने कुछ अजीब महसूस नहीं किया। मैं एक कोचवान के पास पहुंचा तो वो मुझे देखते ही बोला, आए जी, बैठें, टांगा खाली है। टांगे में भी बैठ जाएंगे, मगर तुम्हारे में नहीं चाचा, मैंने कहा। उसने हैरत भरी नज़र से हमें देखा और बोला, क्यों जनाब, मेरे टांगे से आपकी क्या नाराज़गी है? नाराज़गी कोई नहीं, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। हमें शरीफ कॉलोनी जाना है, लेकिन इससे पहले कुछ ज़रूरी मालूमात चाहिए। जी बताएं, वो संजीदा होते हुए बोला। क्या पूछना है आपको? हमें एक ऐसे कोचवान की तलाश है जिसका एक बाजू कटा हुआ है, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। ओह, तो आप बशीर कोचवान की बात कर रहे हैं? हम उसके नाम से वाकिफ नहीं हैं, मैंने कहा। इसका हुलिया कुछ इस तरह का है। बस जनाब, मैं अच्छी तरह समझ गया। वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल उठा, वो बशीर कोचवान के अलावा और कोई नहीं हो सकता। आपको क्या काम है उससे? सब खैरियत तो है ना? हाँ, खैरियत ही है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। बताओ चाचा, बशीर कोचवान कहाँ मिलेगा? आज तो वो अपने घर में ही मिलेगा जनाब, उसने बताया।
इसे रात से बुखार चढ़ा हुआ है, इसीलिए आज उसने टांगा भी नहीं जोता। और बशीर कोचवान का घर कहाँ पर वाक़ है? मैंने जल्दी से पूछा। जनाब, वो नसीराबाद का रहने वाला है, उसने जवाब दिया। ये महल्ला शरीफाबाद कॉलोनी के साथ ही जुड़ा हुआ है। बस तो फिर ठीक है, मैंने टांगे के पायदान पर कदम रखते हुए कहा। तुम हमें नसीराबाद में बशीर कोचवान के घर तक ही पहुंचा दो। मेरी देखा देखी एएसआई शकूर भी टांगे पर सवार हो गया। नसीराबाद लारी अड्डे पर से ज़्यादा दूर नहीं था। 15 मिनट के बाद टांगे वाले ने हमें बशीर कोचवान के घर पहुंचा दिया। मैंने टांगे वाले को रुकने के लिए कहा और शकूर के साथ घर में दाखिल हो गया। बशीर कोचवान से मुलाकात खासी सूदमंद साबित हुई। उसने मुझे बताया कि पिछले हफ्ते की दोपहर उसके टांगे में एक मर्द के साथ एक बुर्कापोश औरत सवार होकर शरीफ कॉलोनी में राना जफर के घर पहुंची थी। मैंने जब उसे मास्टर जमशेद की फ़ोटो दिखाई तो वो निगाह पड़ते ही बोल उठा, जी जनाब, मैंने इसी बंदे को एक बुर्कापोश औरत के साथ राना जफर के घर पहुंचाया था। हमें भी राना साहब के घर जाना है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। तुम दोनों आपस में फैसला कर लो कि हमें वहाँ कौन पहुँचाएगा। मैं चलता हूँ जी आपके साथ, बशीर कोचवान नकाहत भरे अंदाज में बोला। लेकिन ये तो बताएं कि आखिर मामला क्या है। मैंने बशीर को सूरत हाल से आगाह कर दिया। ये जानकर के हम पुलिस वाले हैं। वो दोनों अटेंशन हो गए। मैंने बड़े बाशिकाफ अल्फाज में इन्हें बताया था कि वो बंदा बुर्कापोश औरत को भगाकर यहाँ लाया था। ठीक 20 मिनट के बाद हम राना जफर के घर के सामने खड़े थे। मैंने टांगे वाले को थोड़े फासले पर खड़ा कर दिया था। बशीर कोचवान भी टांगे के अंदर ही बैठा था। उसने इशारे की मदद से राना जफर के घर की निशानदेही कर दी थी। इस वक्त राना जफर घर में मौजूद नहीं था। मेरी दस्तक पर 8 साल एक बच्चे ने दरवाज़ा खोला और सवालिया नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने प्यार से उसके गाल थपथपाए और पूछा, राना साहब को बाहर बुलाओ। अब्बा जी तो घर पे नहीं हैं, उसने बड़ी मासूमियत से बताया। अहमदनगर वाले दोनों मेहमान तो घर में मौजूद हैं ना, मैंने अपने इलाके का नाम लेते हुए इस्तफसार किया। उसने जल्दी से इस बात में गर्दन हिलाई और ये कहते हुए अंदर चला गया, मैं अम्मी को भेजता हूँ। मैंने आंखों ही आंखों में एएसआई शकूर को एक्शन का इशारा दिया और इससे पहले कि राना जफर की घरवाली सूरत हाल को समझ पाती, हम भुर्रा मारकर घर के अंदर दाखिल हो गए। मासूम बच्ची की इतला बिल्कुल दुरुस्त थी। मास्टर जमशेद और फिरदौस बीबी घर के अंदर मौजूद थे। एएसआई ने इन्हें देखते ही पहचान लिया और फिर अगले ही लम्हे इन दोनों की गिरफ्तारी अमल में आ गई। राना जफर की बीवी हमारी कार्रवाई पर बरताए हैरत में रह गई और जब मैंने उसे बताया कि मास्टर जमशेद फिरदौस को भगा कर लाया है तो उसे अपनी समात पर यकीन नहीं आया। वो बड़ी शिद्दत से नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं जनाब, ये दोनों तो मियाँ बीवी हैं। मास्टर जी ने तो हमें यही बताया था कि उन्होंने फिरदौस से शादी की है। इन दोनों ने आप लोगों को जो भी बताया वो झूठ और बकवास थी। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, हकीकत वही है जो मैंने अभी बयान की है। फिरदौस का शौहर उधर अहमदनगर में मौजूद है, ये बदसात। मैंने फिरदौस की जानिब इशारा करते हुए नफरत अंगेज अंदाज में कहा, अपने शौहर से बेवफाई करके इस आशना के साथ घर से भागी थी और मास्टर ने वहाँ अहमदनगर में एक लाश की बेहुरमती करके जो संगीन जुर्म किया है ना, इसके लिए तो इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। राना जफर की बीवी तौबा तौबा करते हुए कानों को हाथ लगाने लगी। हम दोनों मुजरिमों को गिरफ्तार करके अपने साथ ले आए। जब मैं अपने थाने पहुंचा तो मगरिब की अजान हो रही थी। थाने पहुंचते ही मैंने सबसे पहले याकूब को आज़ाद किया और मास्टर जमशेद और फिरदौस को हवालात में पहुंचा दिया। जब याकूब को अपनी बीवी के काले करतूतों का पता चला तो उसने नफरत से उसके मुंह पर थूक दिया। मैंने मास्टर जमशेद और फिरदौस बीवी को इनके जुराइम के ठोस सबूत के साथ गिरफ्तार किया था, लिहाजा इनकी बचत का कोई पहलू नहीं हो सकता था। मैंने एक मजबूत चालान के साथ इन्हें अदालत के हवाले कर दिया। ये मुकदमा ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह चला होगा। अदालत ने इन दोनों को लंबी सजाएं सुनाकर जेल की राह दिखा दी। याकूब का हंसता बसता घर उजड़ गया और इन दोनों के हिस्से में भी जिंदगी भर की जिल्लत ही आई। बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही हुआ करता है।